गौरव के पास है। गौरव से 4th फ्लोर। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ अदाकार सनी देओल। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। पार्टी में स्वागत करने के लिए 2 शब्द बोले। निर्मला जी से मेरा आग्रह है कि पहले बोले। I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Sri Sunny Deol. The moment we got to know that he's coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country: nationalism, to feel for our country, to feel for what happens in at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family. I'm very pleased to welcome him into this party, also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So, looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol
Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. श्री पीयूष गोयल जी शब्दों के माध्यम से सनी देओल जी का स्वागत करेंगे। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशियल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकुपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना, इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे। ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूं इनके दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और आज के इस हाइटेंड टेंशन में अभी अभी हमने श्रीलंका में देखा कैसे आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश पे भी आतंकवादी शख्सियत छाए हुए रहते हैं। उस माहौल में देश के युवा युवतियों को जो प्रेरणा देने वाला काम सनी देओल जी ने फिल्मों के माध्यम से किया, मुझे विश्वास है वैसा ही राजनीतिक जीवन में ये दिल से काम करेंगे, राजनीतिक जीवन में भी ये उसी प्रकार से सेवा भाव और संवेदना से कठोर मेहनत करेंगे। फिल्मों में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत राजनीति में लगती है, पर ये वर्षों के खिलाड़ी हैं, वर्षों से इन्होंने फिल्म जगत की सेवा की। मैं खुद मुंबई से आता हूं और मैं जानता हूं कितना परिश्रम लगता है एक एक किरदार को निभाने में, और मुझे पूरा विश्वास है इस नए जीवन के प्रवेश में भी सनी देओल जी उतनी लगन और मेहनत से देश की और देशवासियों की सेवा करेंगे। हम सब युवाओं को प्रेरणा देंगे और आगे चल के इनका योगदान एक नए रूप में राजनेता के रूप से हम सबको देखने का मौका मिलेगा। आपका स्वागत है सनी जी। मित्रों, आप सबको मालूम है कि सनी पाजी बोलने पे कम विश्वास रखते हैं, करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है कि सनी पाजी अपना 2.5 किलो वाला भाषण अभी आप लोगों के सामने करें। हेलो।
जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो जो आप कह रहे हैं उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि जरूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨੇਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। बिल्कुल रजिंदर, इस वेले थोड़ी देर पहला सनी दिओल जो ने वो बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਨੇ। और हालांकि गुरदासपुर ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ जब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਰਸਿਸ ਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ फस्ट रिएक्शन ये सीगा कि नरेंद्र मोदी के नाल काम करना चाहते हैं, देश लिए कुछ काम करना चाहते हैं, इस करके वो बीजेपी के विच शामिल होए। और थोड़ी देर बाद जो प्रेस रिलीज होएगी तो औपचारिक ऐलान जिहड़ा है वो इस मुतल्लक किया जा सकता है कि सनी दिओल गुरदासपुर तो जिहड़ी है चोन लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है पंकज, होर की कुछ खास इस दौरान वेखण नूं मिलिया पीसी दे दौरान की कुछ खास सनी दिओल कुछ ज्यादा बोले नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, पर हुण तां चोण मैदान विच उन्हां नूं उतरना पेगा, चोण प्रचार भी करना पेगा ते जे उतारिया जांदा है जदों इसदा औपचारिक तौर ते ऐलान किया जाता है कि उन्हां नूं गुरदासपुर तो चोण मैदान विच उतारिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिंदर, अगर अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो सब तो अहम गल ये सी कि देश के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने जिहड़ा है वो सनी दिओल नूं शामिल करवाया हुआ है। पीयूष गोयल दूसरा बड़ा चेहरा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच मौजूद सीगे और जिस तरीके नाल
सन्नी देओल ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸन्नी देओल ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ सन्नी देओल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 5 साल वो काम करके दिखाएंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। हालांकि बार बार सन्नी देओल समेत तमाम बीजेपी की लीडरशिप में सवाल पूछा गया कि गुरदासपुर तो जिहड़ा वै वो सन्नी देओल चोन लड़नगे। तो सन्नी देओल ने हाथ जोड़ के मीडिया वाल जिहड़ा वै मीडिया का धन्यवाद किया, लेकिन कुछ भी बोले नहीं। लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही हैं, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि गुरदासपुर तो सन्नी देओल नूं मैदान दे विच उतारिया जा रहा है। हालांकि एक सोर्सिस वालों ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि चंडीगढ़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन काफी हद तक जो जानकारी मिल रही है कि सन्नी देओल ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਪੰਕਜ, ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2017 ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2014 ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਵੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਟ ਸੀਟ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 13 ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ और मौजूदा सांसद ने गुरदासपुर तो, वो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट गुरदासपुर की जी सीट है वो सुनील जाखड़ की नहीं है। सुनील जाखड़ 2017 च ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ 2017 ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਿਖਾ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 80% ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਣਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜਾ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਸਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਚਾਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਜਿਕ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਲੋਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ
देश की सियासत विच पंजाब एक छोटा जिहा स्टेट है, 13 सीटां ने पंजाब दीयां, ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी लिए। सो बीजेपी में शामिल हो चुके ने बॉलीवुड अदाकार सनी देओल गुरदासपुर तो चोण मैदान में उतारिया जा सकता है। उन्होंने गुरदासपुर जिहड़ी कि बीजेपी की रवायती सीट रही 2 दहाकियां तो बीजेपी के हथों खुस गई सी। 2017 जिमनी चोण दौरान कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने इथों जित हासिल की सी। चुनौती है बीजेपी के सामने इस सीट ते एक बार फिर जित हासिल करना। विनोद खन्ना इथों लगातार सांसद रहे। विनोद खन्ना के देहांत तो बाद स्वर्ण सलारिया नूं बीजेपी ने टिकट दी सी जिमनी चोण दौरान, पर कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने इथों एक वड्डे फर्क दे नाल जित हासिल की सी। हुण चुनौती सी बीजेपी के सामने कि आखिर किस वड्डे चेहरे नूं उतारिया जाए इथों चोण मैदान विच। न्यूज़ 18 पंजाब के सीनियर एडिटर रितेश लखी इस वक्त साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। रितेश जी, किस तरह वेखदे हो गुरदासपुर तो चोण मैदान में उतारन की तैयारी कर रही है सनी देओल नूं बीजेपी में शामिल करांदे ही, यानी कि एक वड्डे चेहरे की तलाश की साइड इसी करके इन्ना समा लग रहा है गुरदासपुर और हुशियारपुर की सीटां तो उम्मीदवार ऐलानण विच। देखो राजेंद्र, मैं दस दवा क्योंकि गुरदासपुर की सीट हुण देश की सब तो एक अहम सीट बन गई है। सनी देओल का जो कि एक तरीके नाल बीजेपी के ब्रांड अंबैसडर के तौर पर से उन्होंने वेखिए स्टार प्रचारक बीजेपी लिए जरूर होंगे, पूरे देश में भी वो प्रचार करेंगे। लेकिन गुरदासपुर दे विच एक लैगेसी रही है। विनोद खन्ना इत्थों लगातार 3 बार ते उस तो बाद चौथी बार भी मैंबर पार्लीमेंट रहे ने ते बीजेपी की झोली च सीट अक्सर आती रही है। लेकिन पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ नाल जिहड़ा उन्हां दा मुकाबला होण जाना है वो फसमा है। हालांकि औपचारिक ऐलान जिहड़ा हजे थोड़ी दूर है, क्योंकि अज सवेरे खबरां हजे भी आईयां सन भी शायद चंडीगढ़ तो भी सनी देओल नूं उतारिया जा सकता है। लेकिन जे गुरदासपुर से मुकाबला हुंदा है तो अपने आप ही पंजाब का सब तो फसवा मुकाबला भी हो सकता है, सब तो ज्यादा दिलचस्प मुकाबला भी होएगा। तो ये देखना होगा भी फिल्म दे पर्दे उत्ते अपने जौहर दिखाने वाले सनी देओल चोण मैदान विच की करके विखाते ने। एक बहुत बड़ी गुडविल है गुरदासपुर के। जे आपां इलैक्टोरल इतिहास देखिए तो फिल्मी सितारियां के पिछे चलन का एक इतिहास है, क्योंकि विनोद खन्ना ने एक लंबा चौड़ा जिहड़ा स्टेंट सीगा बतौर एक मैंबर पार्लीमेंट इत्थों कढ़िया ते लोकां ने उन्होंने बहुत हुंगारा दिता, क्योंकि 4 बार मैंबर पार्लीमेंट बनना कोई छोटी गल नहीं होंदी। सनी देओल भी उसी लैगेसी नूं अगे करना चाहते हैं ते किते ना किते जिहड़ी सीट लग रहा है भी वापस कांग्रेस के फोल्ड में जा रही थी, क्योंकि पिछली बार इत्थों सुनील जाखड़ जिहड़े बाई इलैक्शन जिते सन उस तो बाद ये समझ विच आ रहा है कि हुण किते ना किते गुरदासपुर नूं किते नरेंद्र मोदी किसी भी हालत विच लूज नहीं करना चाहते सीट नूं ते सनी देओल दा इत्थों उतरना पंजाब का एक होर स्टार कॉन्टेस्ट इस सीट नूं बना दिंदा है। ते हुण पहला पंजाब वासियों दी बल्कि समूचे देश वासियों की नज़र इस सीट ते रहण वाली है, क्योंकि बीजेपी दा एक बहुत अहम चेहरा जो कि उन्हां लई कौमी पद्धर ते भी बहुत वड्डा प्रचार या स्टार कैंपेनर साबित होएगा, वो खुद गुरदासपुर के चोण दंगल विच उतरेगा या उतरन जा रहा है। रितेश जी, ये भी मनिए कि हुण सनी देओल नूं मैदान में उतारिया जा सकता है, पर सामने हुण सुनील जाखड़ ने। सो चुनौती किस लिए ज्यादा तुसीं वेख सकते हो? सुनील जाखड़ लिए सनी देओल ज्यादा चुनौती बन सकते हैं या सनी देओल लिए सुनील जाखड़ एक बड़ी चुनौती होंगे? लगभग 1,99,000 का मार्जन सी जो पिछली जिन्हें चोणां होईयां सन, जदों कि सुनील जाखड़ ने स्वर्ण सलारिया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार जो बाई इलैक्शन गुरदासपुर का होया सीगा विनोद खन्ना उन्हां दी मौत तो बाद, उस बाई इलैक्शन दे विच 2 लाख का बड़ा वड्डा मार्जन सी। इसनूं समझना पैना, क्योंकि गुरदासपुर की जे सीट की गल कर रही है तो सुजानपुर भोआ ते पठानकोट 3 जिहड़ियां असैंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां 9 असैंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां विचों पैंदियां ने, ये प्रिडोमिनेंटली हिंदू आबादी वालियां सीटां ने ते बीजेपी नूं हमेशा ही इन्हां सीटां तो जित मिलती रही है। लेकिन उस तो इलावा 6 होर सीटां ने जिस दे विच कि कादियां बटाला समेत कई अहम सीटां जिथे कि इस वक्त कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन जिहड़ियां इनिशियल रिपोर्ट्स से सर्वे आए ने उन्हां दे विच इह साफ हो रहा है भी इत्थे एक फसवीं टक्कर देखण नूं मिलनी हैगी है। इस हालात दे विच सनी देओल दा इस चोण सीट के उत्ते लड़ना वो अपने आप विच मामले नूं दिलचस्प बना दिंदा है, क्योंकि जदों भी ऐसे स्टार इहो जिहे अभिनेता या इहो जिहे सुपरस्टार कदे भी मैदान विच उतरदे ने तां वो सारे इलैक्टोरल जिहड़ा गणित हुंदा मैथमैटिक्स हुंदा है उस नूं बिगाड़न दी भी क्षमता रखते ने। जिहड़ा हालात विच सुनील जाखड़ लई जिहड़ी चुनौती है ते जिहड़ी लड़ाई है उस निश्चित तौर पे थोड़ी मुश्किल हुंदी नजर आ रही है। शुक्रिया।
रितेश जी इस तमाम गलबात ਲਈ ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ